Assalamu alaikum. This is Talha Fuzel in your own channel, Commerce with Talha Fuzel. And today our topic is income statement format and statement of financial position. So we really want to have a quick look at the format of the income statement. So here it is. This is a basic format of income statement. When we look towards this format, we can see that there is a sales initially, and from the sales, we will deduct sales return. Whenever we deduct sales return from the sales, we will get the net sales value. After that, the most important heading is cost of goods sold. Opening inventory, obviously, what is opening inventory? It is the last year leftover inventory. देन हम इसमें परचेजेस को ऐड करते हैं, परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं और कैरेज इनवर्ट को ऐड करते हैं. After solving all these things, we get this value, and from this value हम closing inventory को deduct करते हैं to finally get the value of cost of goods sold. सेल्स नेट सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं, देन वी विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. एंड very important, from the gross profit, we have to add other income. From the other income, या we can say that कि other income में क्या क्या चीजें हैं. अदर इनकम में अदर इनकम में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? ओके, थिंक ओवर इट. डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकती है, कमीशन इनकम हो सकती है, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन विच इज गेन ऑन disposal of any non-current asset. These were not included initially because this video is for mostly class 10th students and for final students 11th class. So this can be possible. ठीक है कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट भी आ जाए तो हम इस इनकम को ऐड कर देंगे. आफ्टर दैट, ऑल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, कैरेज आउटवर्ड हो सकता है, सैलरीज, वेजेस, इंश्योरेंस एंड ऑल दैट एक्सपेंसेस. तमाम एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया और इसके टोटल को हमने क्या किया, इसमें से डिडक्ट कर लिया. तो फाइनली वी गेट द प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर. प्रॉफिट होगा तो वी विल राइट इट एज अ पॉजिटिव वैल्यू, और अगर लॉस होगा तो नेगेटिव वैल्यू. वी मस्ट हैव अ क्विक लुक टुवर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. एंड गेस व्हाट, इसके बाद वी विल डेफिनेटली वर्क on the adjustment, so that adjusted income statement and adjusted statement of financial position भी हमारा आज इस वीडियो में टॉपिक कवर हो जाए. And this is absolutely about the theoretical part, and in the next video I will solve a question, and then inshallah we will be having greater understanding when we solve the question. Okay, starting from the statement of financial position format, ऑलवेज रिमेंबर देयर विल बी थ्री हेडिंग्स और ये थ्री कॉलम्स होगी. सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आ गई कॉस्ट, देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, द थर्ड हेडिंग इज द नेट बुक वैल्यू ऑल्सो नोन एज एनबीवी. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले नॉन करंट एसेट आ गए. नॉन करंट एसेट को हम जब देखते हैं तो हमारे पास प्रेमिसेस आ जाती है. व्हाट आर प्रेमिसेस? प्रेमिसेस आर द कंबाइंड वर्ड्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. Similarly, after premises, it might be possible कि plant and machinery आ जाए, motor vehicle आ जाए, fiction fittings आ जाए. It can be any non-current asset. तो हम क्या करेंगे, non-current asset की cost में से, this is a very important part. What does this means? यहाँ पे I must tell you कि यहाँ पे क्या चीज आ रही होती है. Usually, always remember कि यहाँ पे total depreciation value आनी चाहिए. Total depreciation of the asset, which would be not only the value which is given in the trial balance, but also the value which is in the adjustment. ठीक है, तो जब इसको हम डिडक्ट करते हैं कॉस्ट में से, we will finally get net book value.
आई थिंक इट विल बी क्लियर। और इंशाल्लाह जब हम इसकी एडजस्टमेंट और क्वेश्चंस करेंगे तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके, आफ्टर दिस हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके ये टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, which is also known as total non-current asset. After calculating the total non-current asset, we then move towards the current assets. अच्छा, आई हैव ट्राइड कि मैं करंट एसेट की क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड करूं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मस्ट बी नोटेड कि करंट एसेट की जो ऑर्डर है इट विल रिमेन द सेम। सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री आ जाती है विच इज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। देन ट्रेड रिसीवेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड रिसीवेबल में से हम हमेशा यहां पे हम माइनस कर देते हैं एनी इरिकवरेबल डेट्स। इरिकवरेबल डेट्स माइनस करके जो वैल्यू आती है इसमें से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की क्लोजिंग वैल्यू, आई हैव रिटन हियर कैरेट डाउन, इस वैल्यू को यहाँ पे इसमें से डिडक्ट करते हैं। और जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज द नेट वैल्यू विच इज टू बी, वी कैन से दैट रिगार्डेड एज द वैल्यू विच विल बी रिसीव्ड। ठीक है, जिसमें ना डाउट है और ना ही कंफर्म्ड है कि ये वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये इसको हम बोल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है। फ्रॉम दिस वैल्यू हम देन अदर रिसीवेबल लेकर आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर अदर रिसीवेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज द प्रीपेड एक्सपेंसेस and second one is the accrued income. What is prepaid expenses? Prepaid expenses are all those expenses which has been paid in advance, and accrued income are all those income which has in which services has been provided but payment is still not received. That's why it becomes our current asset and they all lie in the heading of other receivable. तो ये other receivable ये आ गई वैल्यू। देन रिमेंबर बैंक में या तो पॉजिटिव वैल्यू लिखी होगी या उसके आगे क्या लिखा हुआ होगा, डेबिट बैलेंस लिखा होगा, तो उसको हम इंक्लूड कर देंगे एंड एट द एंड कैश बैलेंस। अब जब हम इन तमाम वैल्यूज को एड अप करेंगे तो वी विल गेट टोटल करंट एसेट। और इस करंट एसेट को, करंट टोटल करंट एसेट को वी विल ऐड विद द नॉन करंट एसेट की वैल्यू, तो वी विल गेट द टोटल एसेट्स वैल्यू। यहां इसको क्लोज करना जरूरी है बिकॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड फेज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें सबसे पहले हमारे पास कैपिटल एंड लायबिलिटी की हेडिंग आ गई एंड आफ्टर दैट हमने कैपिटल एट स्टार्ट लिखा। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। इसमें हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड किया विच इज कैलकुलेटेड हियर। ठीक है, अगर ये लॉस होगा तो हम लॉस लिख देंगे और ये माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर के नाम से। और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ड्रॉइंग माइनस करेंगे। ड्रॉइंग कैन बी कैश, ड्रॉइंग कैन बी ऑफ गुड्स। ठीक है, ये हम इसमें से डिडक्ट करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज वैल्यूज वी विल गेट द, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एट एंड आ गया। ठीक है, अच्छा, इसका टी अकाउंट के कॉन्सेप्ट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी हम इंशाल्लाह देख लेते हैं इसको। कैपिटल एट एंड में फिर वी विल मूव टुवर्ड्स द लायबिलिटी सेक्शन। लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी, और ये जो मैंने बॉक्स बनाया है दिस रिप्रेजेंट एनी वैल्यू। लेट्स से 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन की जो बैंक लोन की वैल्यू होगी वो यहां आ गई। और ये जो 10% है दिस विल इफ इट इज अनपेड, तो ये हमारा अदर पेबल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, खैर, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमने ट्रेड पेबल दिखाया, ट्रेड पेबल की वैल्यू आ गई। देन हमने अदर पेबल दिखाया विच इज accrued expenses and the combination of prepaid income. Always remember, this is opposite of which we have discussed earlier in other receivable. This is accrued expenses and prepaid income. Always remember, ठीक है? So accrued expenses are those expenses which has been incurred but not paid yet. And prepaid income क्या होती है?
वो इनकम जो हमने पेमेंट रिसीव कर ली इन एडवांस में बट वी हैवंट प्रोवाइडेड द सर्विसेज, सो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी करंट लायबिलिटी अंडर द हेडिंग ऑफ अदर पेबल इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन दोनों के टोटल किया जब हमने, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है। और आखिर में इन केस ऊपर हमारे पास बैंक का जो बैलेंस था वो डेबिट नहीं था या नेगेटिव बैलेंस था, तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा और इट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी करंट लाइबिलिटी। इन तमाम वैल्यूज को हमने ऐड किया। आफ्टर एडिंग दिस वैल्यूज ये मेरे पास टोटल करंट लाइबिलिटीज आ गई। करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड तीनों को हमने ऐड किया एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। This capital and liabilities are the value same, which must be same। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर हमारी ये वैल्यू सेम है, इट मीन्स वी हैव डन all the work perfectly। It remind us that all the work which has been started from the T accounts, then we have prepared the trial balance and income statement and then SOFP। हमारा सारा काम, हमारी सारी अकाउंटिंग अभी तक बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीटेड है। ठीक है। बट वेट, अब स्टोरी आनी है और वी कैन से दैट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो कौन सी पिक्चर है? दैट इज बेसिकली द एडजस्टमेंट्स। ठीक है। So moving towards the adjustments, all those people who are in the grade 9 उनके लिए यहाँ तक की वीडियो है। Now this video, the second part of the video contain the knowledge, contains the detail of the adjustments। अब adjustments को I always treated, I always think them or name them the big six sole trader adjustments। एडजस्टमेंट्स। ठीक है। बिग सिक्स सोल ट्रेडर एडजस्टमेंट्स में नंबर वन इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। नाउ what is the treatment, what is the rule behind the closing inventory? This has to be clear to all the students। Rule is, I am making it simple। मैं इस रूल को डिस्कस तो कर रहा हूं लेकिन प्लीज इग्नोर इफ यू हैवेंट स्टडीड द चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। It will always be valued at cost or market value, whichever is lowered. Or if you remember, this is the concept of NRV, net realizable value। How to record these transactions? इनकम स्टेटमेंट के अंदर these values will be deducted and स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर these will be treated as a current asset as I have shown you earlier। ठीक है भाई। तो बिग सिक्स की पहली जो ट्रांजैक्शन थी, पहली एडजस्टमेंट थी, इट इज क्वाइट इजी
or any trader account, usually without closing inventory, is incomplete. The next one is accruals, or I'm right now talking about the expenses part only. Now, what are accrued expenses? These are those expenses which has been incurred but they are not paid. ठीक है? That's why by nature they are current liability. And what will be the impact? हम क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसको ऐड कर देंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको इंक्लूड कर लेंगे अदर पेबल। ठीक है? अच्छा, इसको ऐड कहाँ करेंगे? अंडर द नेम ऑफ सेम हेड। फॉर एग्जाम्पल एक्रूड सैलरीज है तो इट विल बी एडेड इन द हेड ऑफ सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है? आई थिंक दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। नाउ द थर्ड big fish, or we can say that third adjustment is prepaids, and right now talking about the expenses only. अच्छा, यहाँ पे it is very important कि we must know कि ये accrued या prepaid की हम जो बात कर रहे हैं, these are the closing inventories only, sorry, closing values only. ठीक है? तो इसका टी अकाउंट भी हम इंशाल्लाह थोड़ी सी कोशिश करेंगे डिस्कस कर लें। अब व्हाट आर द गोल्डन रूल्स? रूल नंबर वन, इन द इनकम स्टेटमेंट हम इसको डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, जो भी हमारा एक्सपेंस का हेड होगा। ठीक है? बट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन these will be added as current asset under the heading of other receivable as discussed earlier। ठीक है? चलो भाई, हमारी आउट ऑफ सिक्स हमने तीन को डिस्कस कर लिया। Now, when we talk about the fourth one, that is the nightmare for the students. Yes, you are right, depreciation expense. But don't worry, here depreciation expense जो है ना वो तंग नहीं करेगा आपको इंशाल्लाह, because there is no complex working, no complex T accounts. यहाँ सिंपल सा रूल है। Either they have been giving you a straight line method, or again whenever we talk about the straight line method, तो सिंपल कॉस्ट गिवन होगी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन लगा दो, और देयर मे बी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। इट इज वेरी रेयर कि ये इस तरह की ट्रांजेक्शन दें आपको, इस तरह की स्ट्रेट लाइन मेथड दें, बट इट इज अ पार्ट, सो वी मस्ट नो। सेकेंड वन इज द आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस provision for depreciation. What is provision for depreciation? It is the total depreciation. और जो वैल्यू बचेगी दैट इज नोन एज नेट बुक वैल्यू, इस पे हम परसेंटेज लगा देंगे, तो वी विल गेट द डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स। ठीक है? वी विल गेट द वैल्यू, बट अगेन हम करेंगे क्या? इट विल बी एडेड इन इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। What about statement of financial position?
इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इफ यू रिमेंबर, ये जो हमने इस हेड की बात की थी, ये वाली हेडिंग की बात की थी, इस हेडिंग के अंदर हम क्या करेंगे? एड दीज इन प्रीवियस प्रोविजन एंड वी विल गेट द टोटल depreciation till that date, till that year. ठीक है? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फोर्थ, जो हमारी एडजस्टमेंट थी, वो हमने फोर्थ की बात कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज हम सबका प्यारा इररिकवरेबल डेट्स। अब इररिकवरेबल डेट्स इज टेक्निकली वेरी इजी व्हेन इट कम्स अलोन, बट अगर इसके साथ प्रोविजन भी आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो थोड़ा सा ये प्यारा नहीं लगता। ठीक है? अच्छा जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की हम जब इररिकवरेबल की बात करते हैं, तो इन द एडजस्टमेंट साइड हमें गिवन होता है कि 4,000, 2,000, 100, वट एवर द वैल्यू, इतने अमाउंट की जो अमाउंट है, इतनी वैल्यू की जो अमाउंट है, वो क्या हो गई है? इररिकवरेबल हो गई है, बैड डेट्स हो गई है। व्हाट वी विल डू? ट्रायल बैलेंस के अंदर से जो हम ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे, उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे इररिकवरेबल डेट्स को, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? यस, दैट्स वेरी गुड, इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ठीक है? और एसओ एफपी में हमने ट्रेड रिसीवेबल में से इररिकवरेबल को माइनस कर दिया। बट अगर यहां तक स्टोरी होती तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान होती। इसमें प्रॉब्लम यह है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमें चेक करना पड़ेगा। व्हाई? अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ये तो अदर इनकम बन गई, और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या बन गई? एक्सपेंस बन गई। सो व्हाट वी विल डू, हमने ट्रेड रिसीवेबल में से इररिकवरेबल को माइनस किया। अब जो हमारे पास वैल्यू बची, इस पे हमने परसेंटेज ऑफ पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लगाया। बेस्ट रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आप टी अकाउंट बना लो, और इफ यू डोंट वांट टू मेक अ टी अकाउंट, तो हम वो भी देख लेते हैं। पीएफडीडी के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन वाज इन द ट्रायल बैलेंस, वहां से हमने वैल्यू उठाई, और ये जो वैल्यू आई, इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम ले गए कैरेट डाउन वैल्यू। नाउ ऑब्वियसली हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। लेट से यहाँ पे 1000 थी, यहाँ पे 1500 आ गई, इसका मतलब है 500 इनकम स्टेटमेंट इधर आ गया, विच रिप्रेजेंट इंक्रीज इन प्रोविजन। और हमने जब टी अकाउंट बनाया, यहाँ पे ब्रॉड डाउन आया 1000 था, और यहाँ पे जो कैरेट डाउन हमने निकाला वो 600 निकला। इसका मतलब है प्रोविजन 400 से डिक्रीज हो गई, इनकम स्टेटमेंट इधर आ गई, विच रिप्रेजेंट डिक्रीज इन provision for doubtful debt, which is to be treated as other income, कहां पर? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है? However, in both the situation, हम एसओएफपी में इस वैल्यू को लेके जाएंगे, एसओएफपी में इस वैल्यू को लेके जाएंगे। ठीक है? तो ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल भी चीज है, और वेरी इजी। तो आई डोंट फील के यू विल गेट एनी ट्रबल इन दिस, अनलेस अनटिल आपने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है? तो इसको करने के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन, विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट
गेट कंफ्यूज्ड। ड्राइंग ऑफ गुड्स, पहले हम ड्राइंग ऑफ गुड्स की बात कर लेते हैं। अगर वी हैव अ ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ स्टॉक फॉर ओन यूज, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ड्राइंग कब कहलाएगी, जब क्या हो रही है, वो ओन यूज के लिए ओनर विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, सिंपल, हम इन द इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सिंपली परचेजेस में से इसको डिडक्ट करेंगे, सिंपल। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या करेंगे, कैपिटल एट स्टार्ट में जब प्रॉफिट ऐड हुआ था तो यहां पे हमने माइनस ड्राइंग दिखा दी, ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एट एंड। तो आई डोंट थिंक सो, बस ये चीज समझने वाली थी। इफ दिस इज क्लियर तो हमारी ड्राइंग ऑफ गुड्स इज वेरी इजी। सेकेंडली, समटाइम्स देयर इज अ ड्राइंग ऑफ कैश, चेक भी तो हो सकती है। ओके, कैश या चेक की सूरत में व्हाट वी विल डू, वी विल नथिंग, वी विल डू इन द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल के अंदर ड्राइंग लेस कर देंगे। तो भाई जहन में फौरन सवाल आएगा कि ये तो आप एक इम्पैक्ट बता रहे हो, दूसरा इम्पैक्ट कहाँ गया। तो मेरे दोस्त, मेरा कैश या मेरा बैंक विल बी डिक्रीजिंग। तो इन दोनों का इम्पैक्ट का ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से है। इट हैज नथिंग टू डू with the income statement. These are the six big fish, big adjustments जो किसी भी सोल ट्रेडर बनाने में हमें इनसे वी कैन कम इन एंड इंटरेक्ट विद दीज ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसको हम, मैंने कुछ इस तरह से इसकी समरी बना ली, accrued expenses, prepaid expenses, depreciation, bad debts. What is happening in the income statement and what is happening on the स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अगेन मैं भूल रहा था एक बात, मुझे एकदम से ये बात ख्याल आई कि वी हैवंट डिस्कस अबाउट द एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम क्या चीज थी बेसिकली, इनकम, ओहो, अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। तो इनकम तो अर्न हो चुकी है, देन व्हाट वी विल डू, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो हमने अदर इनकम का हेड बनाया था उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एसओएफपी के अंदर हम अदर रिसीवेबल में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक और चीज क्या आ गई, प्रीपेड इनकम। तो प्रीपेड इनकम हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो, नेचर सेम है, वर्किंग सेम है। फर्क क्या है, यहां पे इनकम है तो अदर इनकम का रोल शुरू हो जाएगा, वहां से इसको क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर देंगे। कहां पे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और एसओएफपी के अंदर
ये अदर पेबल में चला गया बिकॉज इट इज अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि प्रीपेड इनकम का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड बट सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड। डॉक्टर ने क्या किया कि पेशेंट से पहले से अपॉइंटमेंट ले दिया और क्या कर दी, पेमेंट ले ली। तो इट बिकम्स लाइबिलिटी फॉर द डॉक्टर टू प्रोवाइड द सर्विस और रिटर्न द अमाउंट। ठीक है, आई थिंक हमारे लिए वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसको यहीं तक रखते हैं। प्लीज डू कमेंट इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज subscribe my channel and do share my video so that every student get to know about my you can say that little efforts। और ये चैनल आप लोग के लिए है, आप लोगों को ही इसको ग्रो करना है सो दैट हम आने वाले वक्तों में इन नियर फ्यूचर मेरा प्लान ये है कि वी विल कंप्लीटली सॉल्व पेपर्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, सो इंशाल्लाह मीट यू इन अनदर वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन, और उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है। व्हाई दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट दिस क्वेश्चन कंटेन 8 ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो इसकी इनकम स्टेटमेंट है, देन इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड होपफुली जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट अभी कवर किया उसके आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑल द पार्ट विल बी कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।